Dear student, after taking matrix, some part of matrix, in continuation of matrix, a important topic, I am going to take determinant. Determinant is very helpful in finding the inverse of matrix and describing the many conclusion about matrix, singular matrix and non-singular matrix. In this lecture, I will explaining you how a determinant can be expand. ओके, डिटर्मिनेंट को हिंदी में सारणिक कहते हैं। किसी मैट्रिक्स को जब हम एज ए मॉड ले लेते हैं तो उसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। मैट्रिक्स की तरह डिटर्मिनेंट भी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। सपोज कीजिए ये कोई मैट्रिक्स है A1 A2 A3 A4 ये मैट्रिक्स है। इसमें 2x2 की मैट्रिक्स है। अगर इसको हम एज ए मॉड 2 पैरेलल लाइंस के बीच में ले लेते हैं, इफ वी राइट दिस मैट्रिक्स मॉड A, देन it is called a determinant. Then it is called determinant. Mod A, it is called determinant. Any line, suppose A1x plus B1y is equal to 0, A2x plus B2y is equal to 0. These two simultaneous equation, if we eliminate x and y will get a1 b2 minus a2 b1. For easily remember this one, we can write determinant form a1 b1 a2 b2. It is a form of determinant, and this can be we can take expansion of determinant. We can take expansion of this one. Here you see 2 rows and 2 columns. In expanding determinant, we can take any rows or any column. Here 2 rows R1, R2 and C1, C2, 2 columns. You remember properties of determinant is always a square form, means 2 by 2, 3 by 3, like that. Determinant a rectangular arrangement, but here number of rows and columns are always equal. Matrix it may be not equal, but in determinant it must be equal. We can expand this determinant with respect to R1. Expand this determinant with respect to R1. R1 means first rows. We take first rows A1 and this multiplied by its cofactor B2, and sign concept we take if it is first rows and first column. Sign concept for expanding determinant, sign means plus or minus. If number of rows plus number of columns even number like 2, 4, this one, we take positive sign. If otherwise, if odd number, we take negative sign. Means on expanding the determinant,
we can take any rows and any columns with respect to any rows and columns. We first take away first rows. On expanding, each rows is multiplied its cofactor. Here A1 cofactor is B2. Sign concept is, you see, this is the element of first rows and first column, and 1 plus 1 is 2, so we take positive sign. अदर एलिमेंट ऑफ रोज इज B1. दूसरा एलिमेंट B1 है. B1 जो है फर्स्ट रोज है और सेकेंड कॉलम है. फर्स्ट रोज है और सेकेंड कॉलम है, इसलिए इसका साइन नेगेटिव लेंगे. तो B1 लिया और B1 को इसके कोफैक्टर B1 के कोफैक्टर A2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इस तरह हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं. अब कोई जैसे मैट्रिक्स है अपने आप में इंडिविजुअली हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैट्रिक्स को एज ए डिटर्मिनेंट लें तो उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं. जैसे आपका ये डिटर्मिनेंट है 3, ये डिटर्मिनेंट है आपका 3, 1, -2, 5. इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं. तो एक्सपेंड करने के लिए अगर हम फर्स्ट रोज के अकॉर्डिंग लेते हैं, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रोज, तो फर्स्ट रोज का फर्स्ट एलिमेंट 3 है और ये इसकी पोजीशन है, पहली रोज है और पहली कॉलम्स है. तो 1 + 1 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, तो इसलिए इसका साइन पॉजिटिव लेंगे. 3 और इसका कोफैक्टर है 3 का कोफैक्टर देखिए इधर हट दिए, 3 का कोफैक्टर है 5, तो 5 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. अब दूसरा एलिमेंट लेंगे, इस रोज का 1 है, इसका साइन ये फर्स्ट रोज है और सेकेंड कॉलम है. तो 1 + 2 3 हो गया, इसलिए इसका साइन नेगेटिव लेंगे. तो इसका साइन का कंसेप्ट हो गया 1 और इसका कोफैक्टर है -2, तो -2 ले लेंगे. तो ये आपका हो गया 15, माइनस प्लस हो गया, तो ये 2 1 जा 2, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 70. तो इस तरह डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं. आपको हमने बताया कि डिटरमिनेंट को किसी रोज एंड कॉलम से ले, वैल्यू आपकी सेम आएगी. तो ये तो अब ये इसको जब हमने मॉड ले लिया तो ये डिटरमिनेंट हो गया. ये मैट्रिक्स जो है जब मॉड में ले लिया तो ये डिटरमिनेंट हो गया. ये मॉड 2 पैरेलल लाइंस में, तो आपको बताया गया था मैट्रिक्स का नोटेशन ब्रैकेट होता है. इस ब्रैकेट को अगर हम मॉड में ले लेते हैं, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में एलिमेंट ले लेते हैं, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में एलिमेंट ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाता है 2 पैरेलल लाइंस के बीच में ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाता है डिटरमिनेंट. और डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका हमने बताया कि पहली रोज को लिया गया, उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया. साइन के कंसेप्ट के लिए 1 + 1 हमने 2 लिया, इवन है इसलिए इसका साइन पॉजिटिव ले लिया और इसके कोफैक्टर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 15 हो गया. 1 यहाँ लिया, ये 1 जो है इस रोज का सेकेंड एलिमेंट है, इसकी पोजीशन पहली रोज और दूसरी कॉलम है. 1 + 2 3 हो गया, इसलिए इसका साइन हमने नेगेटिव ले लिया और सॉल्व करने पे 17 आ गया. तो अब इसी को हम दूसरे रोज के हिसाब से सॉल्व करें या दूसरी कॉलम से, तो इस डिटरमिनेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू C2. C2 आपका ये है ना, C1 C2 कॉलम C2 है. एक्सपेंडिंग दिस डिटरमिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू C2, तो C2 का पहला एलिमेंट है आपका 1 और इसकी पोजीशन है पहली रोज और सेकेंड कॉलम. तो 1 + 1 3 हो गया, तो इसका साइन माइनस लेंगे, माइनस, और इस 1 का कोफैक्टर -2 है, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. फिर आपका इस कॉलम 2 का सेकेंड एलिमेंट 5 है. 5 का पोजीशन है सेकेंड रोज, ये दूसरी रोज है और पहली कॉलम है. तो 2 + 1 3, पहली ये दूसरी रोज है और दूसरी कॉलम भी है. देखिए ये 5 जो है दूसरी रोज का एलिमेंट है और दूसरी कॉलम का, तो 2 + 2
4 हो गया, इसलिए इसका साइन पॉजिटिव लेंगे, ये हो जाएगा 5 3 जा, तो ये आपका हो गया 2 + 15। तो आप देख रहे हैं कि कॉलम रोज फर्स्ट से हमने जब एक्सपेंड किया तो भी वैल्यू 17 आई, और कॉलम 2 के हिसाब से किया तो भी वैल्यू 17 आई। तो हम किसी भी डिटरमिनेंट को किसी भी रोज एंड कॉलम्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। मैट्रिक्स में डिफरेंस ये है कि मैट्रिक्स कैन नॉट बी सॉल्व इंडिविजुअली, इसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, लेकिन इसको एज ए डिटरमिनेंट लेंगे तो हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। और दूसरी बात है, डिटरमिनेंट में हमेशा रोज एंड कॉलम्स इक्वल होती है। एक हम जनरल इक्वेशन लेते हैं डिटरमिनेंट की, जैसे ये है 3/3 की, इसी तरह 3/3 को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जैसे 3/3 है, मान लीजिए ये एलिमेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसमें देखिए 1 2 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब हम मान लीजिए R1 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, जैसे अपने 2/2 का किया था, R1 के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो नाउ वी टेक रिस्पेक्ट एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू R1 मीन्स फर्स्ट रोज। तो फर्स्ट रोज का एलिमेंट लेंगे, साइन कंसेप्ट के लिए इसकी पोजीशन देखेंगे। ये पहली A1 जो है पहली रोज और पहली कॉलम्स है, तो 1 + 1 2 हुआ, तो 2 इवन है, इसलिए इसका साइन हम पॉजिटिव ले लेंगे, पहली रोज और पहली कॉलम, तो इसका साइन हम पॉजिटिव ले लेंगे, और ये हो जाएगा I² A1। अब इसके कोफैक्टर यहां से देखिए, A1 के कोफैक्टर, ये लाइन छोड़ दीजिए इधर वाली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो इसके कोफैक्टर हो जाएंगे B2 B3 C2 C3। तो ये हो जाएगा B2 B3 C2 C3। ईच एंड किसी भी रोज का एक्सपेंशन करने के टाइम हम किसी भी रोज का 1/1 एलिमेंट लेंगे और उसके कोफैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका साइन हमने पॉजिटिव ले लिया। अब दूसरा A2 है एलिमेंट, ये आपका पहली रोज है और दूसरी कॉलम है, सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रोज एंड सेकेंड कॉलम। सो वी विल टेक निगेटिव साइन बिकॉज 1 + 2 is 3 ऑड, तो इसका हम साइन निगेटिव लेंगे, तो ये हो गया A2। अब A2 का कोफैक्टर निकालने के लिए हम देखिए ये दोनों लाइन ढक देंगे, तो क्या बचा B1 B3 C1 C3, तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा B1 B3 C1 C3। अब लास्ट एलिमेंट इस रोज का बचा है A3 बचा है, तो A3 का साइन पॉजिटिव इसलिए होगा कि ये देखिए पहली रोज है और तीसरी कॉलम है, तो 1 + 3 इवन हो गया, तो इसका साइन हम पॉजिटिव लेंगे। ये साइन कंसेप्ट से समझिएगा, ये नहीं कि पहले बात का ना समझिएगा। तो प्लस ये एलिमेंट है A3। अब इसका लाइन A1 वाली लाइन ढक लेंगे और Y, तो ये बचेगा B1 B2 C1 C2, तो ये बचेगा B1 B2 और यहां जब A3 का लिए B1 B2 और C1 C2। आप ये जो हम टर्म्स लेते हैं, ये इनके डायगोनल्स में दैट टर्म्स इज कॉल्ड कोफैक्टर आर माइनर्स। अब देखिए A1 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी एज एक डिटरमिनेंट है, ये भी एक डिटरमिनेंट है, ये भी एक डिटरमिनेंट है। तो जैसे 2/2 का डिटरमिनेंट हमने सॉल्व किया था, इस तरह इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा A1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो B2 साइन इसका पॉजिटिव ले लेंगे, पहली रोज और पहली कॉलम्स है, तो B2 और B2 का कोफैक्टर है C3, तो C3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखिए B3 जो है पहली रोज है और दूसरी कॉलम, एक छोटा सा डिटरमिनेंट है, इट इज आल्सो ए स्मॉल डिटरमिनेंट, तो इस पहली रोज है दूसरी कॉलम है, तो 1 + 2 is 3, तो इसका साइन हम माइनस ले लेंगे, तो B3 C2। अगेन A2
और in the same way we can expand B1 B3 B3 C1. अब इसको ले लेंगे A3 B1 C2 माइनस B2 C1. अब ये नंबर्स होंगे, वैल्यूज होंगे, तो इसको एक्सपेंड करके कर सकते हैं. आपको हमने बताया वी कैन टेक एनी रोज एंड कॉलम्स एंड विल गेट सेम रिजल्ट. तो इन दिस वे किसी डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं. अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लेते हैं. एक्सपेंड द डिटरमिनेंट 4 5 6 3 1 7 8 9. दिस डिटरमिनेंट को हमको एक्सपेंड करना है. तो हम R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर रहे हैं. तो R1 में एलिमेंट क्या है? 4 5 6. तो हमने 4 लिया, तो ये पहली रोज और पहली कॉलम्स का एलिमेंट है, इसलिए साइन इसका पॉजिटिव लेंगे. तो ये आपका, और इसके कोफैक्टर अब लेंगे 3 1 8 9. 3 1 8 9 3 1 8 9. अब आपका इस रोज का दूसरा एलिमेंट 5 है, लेकिन ये पहली रोज है और दूसरी कॉलम है. 1 + 2 3 हो गया, तो इसलिए इसका साइन निगेटिव लेंगे और इसके कोफैक्टर से हम ले लेंगे. तो 5 का कोफैक्टर क्या है? 2 1 7 9. 2 1 7 9. तो इसका हो गया 2 1 7 9. अब इस रोज का लास्ट एलिमेंट बचा है 6. और 6 पहली रोज है और तीसरी कॉलम है, तो 1 + 3 4 हो गया, तो इसका साइन पॉजिटिव लेंगे और इसके कोफैक्टर हो जाएंगे 2 3 7 8. तो ये देखिए, इस तरह हमने इसके डिटरमिनेंट को निकाला है. अब ये आपका इसके माइनर्स देखिए, 4 के कोफैक्टर्स 3 1 8 9, 5 के कोफैक्टर 2 1 7 9 एंड 6 के 2 3 7 8. अब इसको आगे एक्सपेंड कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3 × 9 माइनस 1 × 8 माइनस 5, 2 × 9 माइनस 1 + 7. सेम कंसेप्ट साइन का ले रहे हैं ना. 6 2 × 8 माइनस 7 3 जा 21. अब इसको सॉल्व कर सकते हैं. 4 9 3 जा 27 माइनस 8 माइनस 5 9 2 जा 18 एंड 7 × 1 7 प्लस 6 8 2 जा 16 माइनस 21. अब 7 में से माइनस 8 करिए, तो ये 27 माइनस 8 19 हो जाएगा. 19 17 माइनस 8 19 और ये 18 माइनस 7 इज 11 एंड 6 माइनस 21 इज 5. तो ये माइनस ग्रेटर है, तो इसलिए साइन पॉजिटिव हो जाएगा. अब ये हो जाएगा 19. 4 9 जा 36 एंड 4 1 जा 4 4 एंड 3 7. 19 4 जा टेबल से भी कर सकते हैं 76. ये आपका 1155 और ये आपका हो गया 6 5 जा 30. 6 5 जा 30. 6 5 ja 30. Okay, and here we get 76 minus 5 and 0 5 and 3 8. So we'll get minus value of determinant is 15 minus 6 is 9. 15 minus 6 is 9 and 15 minus 6 is 9. So value of this determinant is 9. In this way we can expand any determinant. We take another example of determinant. Suppose the determinant can be so delta also, or two parallel lines. Expand this determinant. 4 5 6
5, 7, 3, 2, 4, 2. We are expanding this determinant with respect to R1. With respect to R1. Expanding this determinant with respect to R1. We'll get 4 and is sign positive because first rows and first column. 7, 3, 4, 2. This is second and then minus, because first rows and second column 1 plus 3 is odd number, so 5, and it's 5, 3, 2, 2. Here first rows and third column 1 plus 3 is 4, 4 is sign positive, even number, so positive, so 6, and this is 5, 7, 5, 7, 2, 4. On simplifying we'll get 4, 7 2 ja 14, 4 3 ja 12, minus 5, 5 2 ja 10, and minus 3 2 ja 6, plus 6, 5 4 ja 20, 7 2 ja 40. And simplifying we'll get answer 4, 14 minus 2 is 12 is 14 minus 12 is 2, minus 5, 10 minus 4 is 4, plus 20 minus 14 is 6. On simplifying, 8 minus 20, 36 equal to 24. Now we are expanding this determinant with respect to this determinant with respect to C1. Determinant is 4, 5, 6, 7, 3, 2, 4, 2. We'll take first column. This is first column. First element is 4. Sign concept is same. 7, 3, 4, 2. And this is minus 5. Its cofactor is 5, 6, 4, 2. 5, 6, 4, 2. 5, 6, 4, 2. And here 5, 2. This element is 2, but its position third rows and first column 3 plus 1 is 4. So we take positive sign. So this will become 5, 6, 7, 3. And on simplifying, 7 3 is 14, 4 3 is 12, minus 5, 5 4 is 10, 5 2 is 10, 5 2 is 10, and 6 4 is 24. 6 4 is 24. Plus 2, 5 3 is 15, and 6 7 is 42. 6 7 is 42. After simplifying, 4 into 2 minus 5 minus 24 minus 10, 14, and 2, 12 minus 5 is 7, 12 minus 5 is 7, and 3 minus 1 is 2. On simplifying, we will get 4 2 ja 8, 14 5 ja 70, minus minus plus हो जाएगा 70, and 27 2 ja 54. 7 2 ja 54. 7 2 ja 54. On simplifying, we'll get again 24. Here we expanding with respect to R1 and we'll get 24. Here we expanding in column C1 and also get 24. That is, we found a result. We can expand determinant in any respect of any rows and columns. The value is same. In matrix, write in brackets
and if they taking mod of matrix, we can expand the matrix. In this way we'll do determinant. This expanding of determinant helpful many cases. Must remember it is indicated in parallel lines. Now we are giving some properties of determinant. We with the help of this we can easily expand the determinant. Properties of determinant. Properties of determinant. Properties of determinants. First property. First, the value of determinant. Value of a determinant. The value of a determinant is not altered by the changing the rows into columns and the columns into rows. We take example and show you. Suppose this is a determinant A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. If we total interchange the rows into column into rows, the value of determinant unaltered. If we change this A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. After expanding these determinant, after expanding, this is in parallel lines. This is in parallel. If we change the interchange the rows into column into rows, the value of determinant unaltered. But second property second, if two rows are any two columns only, if two rows are two columns of a determinant are interchange, then the determinant retains its absolute value, but its sign is changed. यदि किसी डिटरमिनेंट की केवल दो रोज एंड कॉलम आपस में बदल दी जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहती है, लेकिन साइन इनका निगेटिव हो जाता है. जैसे ये कोई डिटरमिनेंट कोई रोज में भी कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. अब इसको अगर हम दो रोज आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो वैल्यू इसकी निगेटिव हो जाएगी. न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी. C1, C2, C3 कर दिए. B1, B2 केवल दो, B3, A1, A2, A3. तो एक्सपेंड करने पे न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन साइन जो है चेंज हो जाएगा. इसी तरह अगर कॉलम में चेंज करें तो ये जैसे आपने कर दिया A3, B3, C3 और A2, B2 सेम रहा, A2, B2, C, और यहां हो गया A1, B1, C1.
अब इसमें आप देखिए, ये पहली रोज और थर्ड रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहेगी, बस साइन नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह अगर दो कॉलम्स में चेंज कर दिया, कॉलम 3 को फर्स्ट में ला दिया और फर्स्ट को 3 में ला दिया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी दूसरी हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी की मदद से जो एक्सपेंशन होता है, अगर बड़ी फिगर है तो थोड़ा इजी हो जाता है। प्रॉपर्टी थर्ड, प्रॉपर्टी थर्ड, इफ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे हम लोग बहुत सारे रिजल्ट निकालते हैं। इफ रोज आर टू कॉलम्स of a determinant are identical, the determinants directly vanish without expense, we can say। इसका मतलब यदि किसी डिटरमिनेंट में दो रोज एंड कॉलम एक जैसी हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू शून्य हो जाएगी। बिना एक्सपेंड किए भी कर सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं। जैसे ये कोई डिटरमिनेंट है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 की जगह अगर ये ना होकर वैल्यू सेम हो, A1, A2, A3, B1, B2, B3 और A1, A2 इस C1 की जगह यही रोज हो, सेम एलिमेंट है। देखिए पहली रोज और थर्ड रोज में सेम एलिमेंट है। इसी तरह अगर कॉलम में हो A1, B1, A1, B1, A1, B1, C1 एंड यहां कुछ भी रख दो, A3, B3, C3। अब देखिए यहां पर फर्स्ट रोज और थर्ड रोज सेम है। यहां पर कॉलम्स फर्स्ट A1, B1, C1 और कॉलम 2 A1, B1, C1 दो एक जैसी हैं, तो इसलिए इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। इसको आप प्रूफ करके भी किसी भी वैल्यूज में देख सकते हैं कि इनकी वैल्यूज आपकी सेम 0 आएगी। इसको आप करके देख सकते हैं। इस तरह हम डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी थर्ड हो गई। अब प्रॉपर्टी फोर्थ, ये सारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मदद से बहुत जल्दी हम डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कर लेते हैं। इफ ईच constituent in any rows or in any row or in any column or in any column be multiplied by the same order. Property 4, if each constituent in any rows or in any column be multiplied by same factor, then determinant is multiplied by that whole determinant multiplied by that factor। Means यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी रोज एंड कॉलम में कोई कॉमन फैक्टर कॉमन हो तो उसको पूरे डिटरमिनेंट से कॉमन लिया जा सकता है। जैसे ये है दिस डिटरमिनेंट आपकी फर्स्ट रोज में, फर्स्ट कॉलम में यम कॉमन है तो यम पूरे में बाहर लिया जा सकता है। इसी तरह अगर किसी रोज में सेम कोई कॉमन नंबर है तो उसको पूरे डिटरमिनेंट में बाहर लिया जा सकता है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी 4 हो गई। अब इसके बाद प्रॉपर्टी 5 है, इफ द करस्पॉन्डिंग constituent of any rows or column of a determinant are proportional, the value of the determinant is also 0। यह
किसी डिटर्मिनेंट में कोई रोज में सेम नंबर कॉमन हो और वो रोज या कॉलम्स दूसरे रोज एंड कॉलम्स के प्रोपोर्शन हो, अनुपात में हो, तो के इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 होगी। जैसे ये कोई डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 के A1 के B1 के C1 A3 B3 C3, ये प्रोपोर्शनेट है कॉलम 1 के। कॉलम 1 में A1 B1 C1 और यहाँ के B1 के B1 के C1, तो के हम कॉमन ले सकते हैं होल डिटर्मिनेंट में। अब देखिए फर्स्ट रोज और सेकेंड रोज सेम हो जाएगी, तो अगर किसी डिटर्मिनेंट में आपकी रोज एंड कॉलम्स सेम हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। इस वजह से k इंटू 0 मीन्स 0, वो डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी 6 है, प्रॉपर्टी 6, इफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट इन एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज सम ऑफ two terms, then the determinant can be expressed as the sum of two other determinant मीन्स कैलकुलेशन स्टार्ट करने के लिए किसी डिटर्मिनेंट की रोज एंड ब्रेक को 2 पार्ट में 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आपका ये कोई डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को हमने बताया डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। ये कोई डिटर्मिनेंट है A1 अल्फा 1 B1 बीटा 1 C1 प्लस गामा 1, और अदर सेम है A2 B2 C2 A3 B3 C3। Here this is 2 terms, we can break this determinant in 2 separate determinant, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 and another determinant alpha 1 A2 A3 beta 1 beta B2 B3 gamma 1 C2 C3. This can be subtract also. This we can do in any rows and columns. This is the property 6. Suppose a number 35 45 and 55, 2 3 1 4 3 1. If you expand in respect to R1, calculation take very much time. Then this determinant we can break like that: 30 plus 5, 45 plus 40 plus 5, 40 plus 5, 50 plus 5, 2 3 1 4 3 1। अगर इसको हम 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर लेते हैं तो कैलकुलेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा लाइक दैट: 3 3 50 1 1, और ये हो जाएगा 5 5 5 2 3 1 और 4 3 1। इस तरह इस प्रॉपर्टी का ये फायदा है। 7th प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 7th प्रॉपर्टी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ 2 constituent of any row or columns of a determinant equimultiples of the corresponding constituent of one or more of other rows and columns are added or subtracted, even the value of determinant remain unchanged, मतलब वैल्यू बदलती नहीं है। और यदि किसी डिटर्मिनेंट में आगे की रोज या कॉलम्स, कोई भी रोज एंड कॉलम्स को एक जैसी चीज इक्वी मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें करस्पॉन्डिंग रोज या कॉलम में, तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की बदलती नहीं है। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3।
ये कॉलम 1 है x1, x2, x3, कॉलम 2 है y1, y2, y3, z1, z2, z3। अब हम C1 जो आपकी कॉलम है उसको रिप्लेस कर रहे हैं C1 प्लस m C2, दूसरी कॉलम m C2, और तीसरी कॉलम्स को माइनस n से मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 को C1 को इतना रिप्लेसमेंट कर रहा है। ये 2 या 3 दोनों में कर सकते हैं। तो ये C1 को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं, C1 को सेकेंड कॉलम्स मल्टीप्लाई बाय m एंड थर्ड कॉलम मल्टीप्लाइड बाय n। कॉलम्स m मल्टीप्लाई करके C1 से जोड़ दे रहे हैं और कॉलम C3 में n मल्टीप्लाई करके C1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारा डिटर्मिनेंट अब क्या हो जाएगा, इसकी x1 में हमने m यहां मल्टीप्लाई किया है m y1 माइनस n z1। इसी तरह दूसरी रोज में x2 प्लस m y2 माइनस n z2, x3 m y3 माइनस n z3, और सब सेम है y1, y2, y3, z1, z2, z3। अब आप देखिए प्रॉपर्टी 4 में हमने बताया था कि 5th में कि किसी डिटरमिनेंट को हम 2 या 3 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ये था तो इसको 2 में ब्रेक कर दिया, ये नंबर था 35 तो इसको आप 30 प्लस 5, 40 प्लस 5 ब्रेक कर दिया। तो इसी तरह जो ये डिटरमिनेंट में हमने ऐड किया है x1, m1 एंड दिस वन, इसको 3 डिटरमिनेंट में हम ब्रेक कर दे रहे हैं। तो 3 डिटरमिनेंट में जब ब्रेक कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3। और दूसरा डिटरमिनेंट जो m के साथ है वो आपका हो जाएगा m y1, m y1, m y2, m y3, और y1, y2, y1, y2, y3, z1, z2, z3। और ये सब्ट्रैक्शन बाहर ले लें, ये सब्ट्रैक्शन जो यहां हमने किया था, तो ये तीसरा डिटरमिनेंट हो जाएगा n z1, n z2, n z3, y1, y2, y3, और z1, z2, z3। आपको 4th प्रॉपर्टी में बताया गया था कि 4th प्रॉपर्टी में अगर किसी रोज एंड कॉलम में कोई टर्म्स कॉमन हो, जैसे यहां कॉलम में यहां रोज में, तो उसको पूरे डिटरमिनेंट से बाहर ले सकते हैं। तो यहां भी देखिए m इस डिटरमिनेंट में कॉलम है, यहां n कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे। x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3, ये हम बाहर ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा m1, y1, y2, y3, y1, y2, y3, z1, z2, z3। और थर्ड वाला n कॉमन हो जाएगा, तो n कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा z1, z2, z3, y1, y2, y3, z1, z2, z3। अब हम जानते हैं कि अगर किसी डिटरमिनेंट की 2 रोज या कॉलम एक जैसी हो, जैसे यहां 2 कॉलम एक जैसी है, यहां पर फर्स्ट रोज और थर्ड रोज एक जैसी है। यहां देखिए फर्स्ट कॉलम्स इक्वल है थर्ड कॉलम के, यहां फर्स्ट कॉलम इक्वल है सेकेंड कॉलम के, तो ये दोनों डिटरमिनेंट 0 हो जाएंगे। ये क्योंकि अगर किसी रोज डिटरमिनेंट में रोज एंड कॉलम एक जैसी है, तो जैसे यहां 2 कॉलम एक जैसी, यहां 2 कॉलम एक जैसी, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3, एंड ये आपको हो जाएगा m इंटू 0, n इंटू 0। तो हमको ओरिजिनल डिटरमिनेंट मिल जाएगा, ओरिजिनल डिटरमिनेंट मिल जाएगा x1, x2, x3,
y1 y2 y3 z1 z2 z3. It is equivalent to original this determinant. After this transformation we will get that original determinant equivalent to original determinant. If we suppose this is delta, this is also equal to delta. So it means 7 properties very important, because in this property many properties used, just like here property 5th, here property 4, and here property 3rd. 7 property is so most important. If to the constituent of any rows and column of a determinant equimultipliers of the corresponding constituent of one or more other rows or columns are added or subtracted, even the value of determinant remain unchanged. तो अगर C1 को, जैसे एक हमने एग्जाम्पल लिया था x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, इसमें आपने सेकेंड कॉलम में m मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया और थर्ड कॉलम में n मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो जब ये इस डिटरमिनेंट को हम 3 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी से, और इसमें आपने देखा 4th प्रॉपर्टी से कॉमन फैक्टर बाहर ले सकते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी से जिसमें रोज या कॉलम एक जैसी होती है उसकी वैल्यू 0 होती है, इसलिए 0 हो गई, तो इसके इक्विवेलेंट होता है. ये प्रॉपर्टी कई क्वेश्चंस करने में काफी यूज होती है और इसकी मदद से कैलकुलेशन बहुत शार्ट हो जाता है. कैलकुलेशन हमारा शार्ट हो जाता है. तो ये बहुत हेल्पफुल प्रॉपर्टी है, इसको आप यूज कर सकते हैं. अब एक हम क्वेश्चन देखते हैं. ये 7th प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी मदद से हमारा कैलकुलेशन शार्ट हो जाता है. हमने कहा था डिटरमिनेंट को डेल्टा से भी करते हैं. जैसे ये डिटरमिनेंट है 265 240 219 240 225 198 219 198 181. इस डिटरमिनेंट को हमको सॉल्व करना है. अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करें, अब इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें फिर इसके, तो ये बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. लेकिन इसको प्रॉपर्टी से यूज करें तो ये छोटा हो सकता है. आपको सोचना पड़ेगा कौन कौन सी प्रॉपर्टी कैसे यूज करें. तो अब ये देखिए, ये फिगर बड़ी है, ये छोटी है. तो डायरेक्टली अगर हम C1 कॉलम को रिप्लेस कर दें C1 माइनस C2 से, और C2 कॉलम, दिस कॉलम, ये फिगर यहां बड़ी है, C को रिप्लेस कर दें C2 माइनस C3 से, तो देखिए आपकी फिगर ये छोटी हो जाती है. ये प्रॉपर्टी 7 से अगर इक्विमल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो 265 माइनस 240 इक्वल टू 25, एंड 240 माइनस 225 इक्वल टू 15, and 219 minus 198 equal to 21. Similarly, 240 minus 219 is 21. 225 and 198, this subtracted by this 27, and 198 minus 1 17. ये पूरे डिटरमिनेंट में नहीं सॉल्व चेंज कर सकते हैं, तो ये थर्ड कॉलम एज इट इज है. एज इट इज है. अब हम सोचें क्या करें कि कैलकुलेशन और शार्ट हो जाए. कैलकुलेशन हमारा और शार्ट हो जाए, इसके लिए हम क्या करें, तो हमने रिप्लेस कर दिया अगेन रिप्लेस कर दिया C1 रिप्लेसिंग बाय C1 माइनस C2 और C3 माइनस, अब इसमें आपने 10 मल्टीप्लाई कर दिया. सेकेंड कॉलम में 10 मल्टीप्लाई, इक्वी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरे में करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हमने 10 मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया C2, और 10 मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो हमारा डिटरमिनेंट अब क्या हो जाएगा, 25 माइनस 21, यहां हमने C1 को रिप्लेस किया है C1 माइनस C2 से, तो 25 माइनस 21 4, 15 माइनस 27 माइनस 12, एंड 21 माइनस 17 4. अब इसमें अगर हमने यहां चेंज कोई नहीं किया है, यहां चेंज हमने कोई नहीं किया है, 21 27 17.
अब यहां 10 मल्टीप्लाई कर गया तो ये 210 हो गया, 210 हो गया। 210 को 219 से माइनस करेंगे तो यहां आपका हो जाएगा 9, और इसमें 270 हो गया। 270 को 198 से 270 माइनस करेंगे तो माइनस में होगा, ये हो गया -72, -72। अब 170 को 181 से 17 माइनस करेंगे, 17 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11। यहां पर आप देख सकते हो 181 माइनस 170, तो ये 11। तो इस तरह हमने इसको थोड़ा और छोटा कर लिया। अब क्या करेंगे, अब आप देखिए 3 जो है कॉलम रो 3 में कॉमन है, यहां पर 3 कॉमन है, 3 सबका मल्टीपुल है। तो अगर हम 3 कॉमन ले लें, टेकिंग कॉमन 3 इन रो 2, रो 2 में 3 कॉमन ले लें। आपको मालूम है प्रॉपर्टी 4 से कोई भी पूरे में कॉमन ले सकते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 4, 21, 9, यहां 3 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -4, ये 3 से करेंगे तो -9, यहां आपका ये 27 प्लस था तो ये माइनस नहीं, ये 9 होगा। अब यहां करेंगे तो 3 से तो 3, ये तो माइनस ही है, 3 2 जा 6, तो ये 2 हो गया, 1 बचा तो 3 4 जा 12, और ये एज इट इज ले लिया। 4 17, ये हमने 4 17 11। अब एक ऑपरेशन और करते हैं, R2 को रिप्लेस कर दें, R2 प्लस R1 से, क्योंकि यहां 4 और इससे माइनस हो सकता है ना, तो R2 को रिप्लेस कर दे R2 प्लस R1 से, यहां 0 हो जाएगा तो कैलकुलेशन हमारा 60 हो जाएगा। और R3 को रिप्लेस कर दें, R3 मीन्स रोज 3, R3 माइनस R1, R3 ये है तो R3 माइनस R1, ये ऑपरेशन करते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 तो कॉमन हुआ ही है, तो -4 प्लस 4 इज 0, -4 पहली रोज में तो हमने कोई चेंज किया नहीं है तो इसको 4 21 9 ही कर दिया। दूसरी रोज में R2 प्लस R1 किया है तो -4 प्लस 4 0, और 9 माइनस 21, 9 को 21 से ऐड किया है हमने तो ये आपका हो जाएगा 30, क्योंकि दोनों प्लस प्लस हैं, और -24 और प्लस 9 तो ये 60 हो जाएगा। 24 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 15, तो ये आपका हो गया -15। अब हमने चेंज किया है R3 माइनस R1, तो R3 को R1 से किया तो 4, ये माइनस कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो यहां पर हो गया 0, अब ये आपका 0 हो गया। 17 को 21 से करेंगे तो ये दिस वन है तो ये माइनस होगा, तो 21 माइनस 4, और आपका जो है 11 माइनस 9 इज 2। तो आप देखिए कॉलम फर्स्ट में 2 टर्म्स 0 हो गए। अगर कॉलम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड करें तो इन कोफैक्टर से कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो एक्सपेंडिंग, अब ये डिटरमिनेंट में देखिए 4 तो कहीं कॉमन होने वाला है, हाँ फर्स्ट में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा और शार्ट हो जाएगा। 4 अगर कॉमन ले लें, या इसको इसके रिस्पेक्ट में ही एक्सपेंड कर रहे हैं, ये आपका C1 है, ये C2 है, C3 है। एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू C1, तो ये आपका हो जाएगा 3, और ये आपका 3 जो है जिसके अंदर लेते हैं 4 फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये पहली रोज और पहली कॉलम, तो 1 + 1 2 इवन नंबर है तो इसका साइन पॉजिटिव लेंगे, और इसके फैक्टर जो है
को फैक्टर होंगे 30 माइनस 15 माइनस 4 2, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 15 माइनस 4 इंटू 2। अच्छा, अब इसका कोफैक्टर लेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम्स और सेकेंड रोज है, तो ऑड है माइनस लेंगे, लेकिन जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जीरो से कोई भी फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही होगा, तो हमको कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। इसमें फायदा जीरो करने से हो गया। अब इसी तरह ये वाला एलिमेंट लेंगे तो ये प्लस होगा, इसके कोफैक्टर हैं 21 9 30 माइनस 15, तो जीरो से इन दोनों को मल्टीप्लाई तो जीरो ही होगा, तो बचेगा हमारा 3 इंटू 4, और यहां हो जाएगा 30 माइनस 15 4 इंटू 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 4 3 जा 12, और यहां हो जाएगा 30 इंटू 2, और ये साइन माइनस इसलिए लेंगे कि ये पहली रोज और दूसरी कॉलम है, 1 प्लस 2 ऑड होगा तो इसका साइन माइनस लेंगे, ये ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो हो जाएगा माइनस 15 इंटू 4, माइनस 15, और ये आपका माइनस 4 यहां है, ये माइनस 4 है, तो माइनस 15 इंटू माइनस 4, साइन हमने माइनस लिया है, आप समझ रहे हैं क्यों लिया है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 जा 15, तो ये आपका हो जाएगा 150, 13 5 जा सॉरी यहां 2 है, ये आपका 2 है, तो 13 2 जा 60 एंड 15 4 जा 60, ये माइनस है ही है, ये 60 हो जाएगा। 13 यहां 2 था ना, तो इसको इसके कोफैक्टर से इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किए, तो 13 इंटू 2, और इधर साइन माइनस लेंगे क्योंकि फर्स्ट रोज सेकेंड कॉलम है, ये माइनस 15 इंटू 4, ये इस माइनस 15 वाले को फैक्टर मल्टीप्लाई कर जाएंगे, ये हो जाएगा 50 इंटू 60 0, एंड दिस इक्वल टू 0। अब ये देखिए इतना बड़ा डिटरमिनेंट था, ये इतनी बड़ी फिगर थी, इसको डायरेक्ट करते तो कैलकुलेशन बहुत शार्ट होता, लंबा हो जाता, और इस तरह ये शार्ट हो गया प्रॉपर्टी। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है, तो ठीक से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके पहले प्रॉपर्टी यूज करते हुए एक हम ये टर्म्स लेते हैं, एक्सपेंड डिटर्मिनेंट प्रूव दिस डिटर्मिनेंट इज आल्सो इक्वल टू 0। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें हम एक्सपेंड करना है, तो C2 को हम रिप्लेस करें, C2 मीन्स सेकेंड कॉलम, C2 माइनस C1, एंड C3 को रिप्लेस करें C3 माइनस C2 से। तो आप देखिए इससे क्या चेंज होगा, इस डिटरमिनेंट में क्या चेंज होगा। पहले में तो हमने कोई चेंज किया नहीं पहले कॉलम में, तो 7 माइनस 4 इज 3, 8 माइनस 5 इज 3, 9 minus 6 is 3. Here 10 minus 7 is 3, 11 minus 8 is 3, and 12 minus 9 is 3. अब आपके दो कॉलम से सेम हो गए, तो प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसकी वैल्यू 0। इफ एनी डिटरमिनेंट एनी 2 rows or columns are same, the value of determinant equal to 0। तो प्रॉपर्टी का ये फायदा है कि हम इससे कैलकुलेशन अपना सॉर्ट कर सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी जो आपकी बुक हो उसके सारे एग्जाम्पल्स ही कर डालिए, दैट आर सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि आपका सिंपली जैसे ये है ए बी सी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको प्रूफ करना है ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, ये प्रूफ करना है, ये प्रॉब्लम है, इस डिटरमिनेंट को हमें प्रूफ करना है। तो इसको डायरेक्ट करने के बजाय यदि 1 1 है तो इसको आसानी से 0 कर सकते हैं। तो रिप्लेसिंग C1 पहली कॉलम C1 माइनस C2 एंड आपकी दूसरी कॉलम C2 को रिप्लेस कर दे C2 माइनस C3 से, तो 1 1 ये 0 हो जाएंगे, तो कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा। तो LS साइड हमने लिया, तो 1 माइनस 1
0 a माइनस b, a minus b, a square minus b square. Here 1 minus 1 0, b minus c and b square माइनस सी स्क्वायर. थर्ड कॉलम में कोई चेंज किया नहीं, तो थर्ड ऐसे ही रहेगा. ये भी 7 प्रॉपर्टी से कर रहे हैं. अब इसमें इस डिटरमिनेंट में ये देखिए a माइनस बी यहां कॉमन है, b माइनस सी यहां कॉमन है, क्योंकि हम ये फार्मूला जानते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी. तो यहां आपका हो जाएगा 0 0 1 a माइनस बी माइनस सी और c यहां हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और यहां पे हो जाएगा b माइनस सी और यहां हो जाएगा b माइनस सी b प्लस सी. ये यहां पर इसको लिख सकते हैं ना, b माइनस सी b प्लस सी, और इसको यहां ही रहने दीजिए. तो ये हो गया सी स्क्वायर. अब देखिए टेकिंग कॉमन फैक्टर a माइनस बी फ्रॉम C1 and B minus C from C2. C1 से A minus B कॉमन लिया और C2 से B minus कॉमन लिया. आप प्रॉपर्टी 4 जानते हैं, जो कॉमन है पूरे में से ले सकते हैं. ये हो गया A minus B and B minus C. तो यहां आपका क्या बचा 1 1 1, यहां 1 बचा, यहां 1 बचा और यहां आपका C बचा. यहां पर A minus B कॉमन हो गया तो A प्लस B बचा और यहां b माइनस सी बचा और यहां सी स्क्वायर हो गया. अब देखिए दो पहली रोज में 2 जीरो है, तो इनके कोफैक्टर से तो 0 ही हो जाएगा. इसलिए एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू R1 पहली रोज के अकॉर्डिंग. तो आप जब ये इसको एक्सपेंड करेंगे तो a माइनस बी माइनस सी. अब ये 0 और इसके कोफैक्टर 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो 0 ही हो जाएंगे, तो लिखने की क्या जरूरत है. अब ये माइनस 0, बस थर्ड बचेगा. ये पहली रोज है और थर्ड कॉलम है, तो 1 प्लस 3 4 हो गया. 4 इवन है तो इसका साइन हम पॉजिटिव लेंगे. सी यहां पर है 1 और 1 के कोफैक्टर हो जाएंगे, यहां से देखिए 1 1 कोफैक्टर हो जाएंगे 1 1 ए प्लस बी और b प्लस सी. ये आपका जब b माइनस सी कॉमन हो गया तो यहां b प्लस सी ही बचा था, तो ये कॉमन हो जाएगा. अब इस फैक्टर को अंदर सॉल्व करने तो ये आपका हो जाएगा a माइनस b माइनस सी. ये 1 था, 1 कोफैक्टर, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी और यहां पर है इसको 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पहली रोज और दूसरी कॉलम में ऑड हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा. तो ये आपका हो गया माइनस a प्लस बी. अब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी. अब यहां आप देखिए b ओपन करेंगे तो ये b और ये माइनस भी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. यहां बचेगा c माइनस ए. ये प्रूव हो गया आर एस साइड के. तो इस तरह हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करते हुए ये हम यूज कर सकते हैं. आप हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें हमने ओमेगा रिलेशन बताया हुआ है. इसमें बताया गया है कि ओमेगा क्यूब इजकल टू 1. कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो हमारा देखिए तो ओमेगा क्यूब यूनिटी बताया गया है. और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1 इजकल टू 0. इसकी वैल्यू आपकी 0 होती है. तो ये दोनों रिलेशन हम यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन करने के लिए. जैसे क्वेश्चन है, ये हमको प्रूव करना है ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर. क्वेश्चन फिर से लिख रहे हैं, ये रिलेशन हमको यूज करते हुए करना है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा. इसको प्रूव करना है 0.
1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। हमने आपको बताया कि ओमेगा में दो रिलेशन यूज होते हैं, अगर इस रिलेशन की वैल्यू 0 होती है तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम C1 को रिप्लेस कर दें, C1 को रिप्लेस कर दें C1 प्लस C2 प्लस C3 से, C1 को रिप्लेस कर दें C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब ये जुड़ते जाएंगे, आप प्रॉपर्टी 7 से जानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये भी सेम आ जाएगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड यहां हो जाएगा भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और आप जानते हैं ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। तो ये हम रिलेशन यूज कर ले, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 इक्वल टू 0, तो ये पुट कर दे तो ये 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब ये कॉलम फर्स्ट में सब 0 है, तो इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C1, हमने बताया कि किसी कॉलम रोज से करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 0 माइनस 0, ये 0, इनके कोफैक्टर सब 0 होते हुए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये ओमेगा का कंसेप्ट, इसको आप अलजेब्रा से भी समझ सकते हैं। ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर अगर करें तो ये आपका हो जाएगा, आपको फार्मूला मालूम है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो इस कंसेप्ट से अगर इनको करें तो ये इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब, तो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1, ये क्यूब वाला फार्मूला यूज करते हुए। आपको मालूम है कि पहला ले तो ये 0, नॉट पॉसिबल बिकॉज 1/3 क्यूब इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों रिजल्ट भी काफी यूज होते हैं। ये रिजल्ट जहां ओमेगा क्यूब यूनिटी आ जाती है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपको हमने डिटरमिनेंट कुछ क्वेश्चन से समझाने की कोशिश की। आई हैव एक्सप्लेन डिटरमिनेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। यू डू मोर क्वेश्चंस। आई थिंक यू फिनिश योर एग्जाम्पल इन योर any book which we are taking that are useful for determinant. In this way I have explained you determinant. Okay, thank you.